Good morning, students. So, in previous lecture, we have discussing the demerits of partnership. The fourth point, up till fourth point, we have discussed. The first point is unlimited liability. It is said that the liability of all the partners is unlimited. It means in case there is, if it will a heavy loss occur in the business, then all the partners will contribute and sold their personal property and clear all the debts, all the liabilities. It is the unlimited liability, and the all partners in the partnership firm is a unlimited liability. Second point is limited resources, because there is a limitation of a partners in a partnership firm. Minimum members 2 and maximum is 50 according to the New Companies Act 2014. There is a limitation of a partner in a partnership firm. So when we have a limited partner, then we will have a limited capital, then we have a automatically then we have a limited resources. We can't extend, we can't maximize the numbers of partners in our partnership firm. The third point is conflicts. All the partners, different partners will come from different families, from different areas, from different nature. They have different nature, they have different attitude. So it is a chance that there will be a conflicts between partners. Then it will give a direct impact on our business, on our partnership firm. Fourth point is lack of continuity. Lack of continuity means if one of the partner will death or become insolvent or become retire from the partnership firm, then it will give a direct impact on our partnership firm, and he or she can said that we can close, I want to dissolve this firm. कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म से निकलता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायर हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पार्टनरशिप फर्म पे ऐसे पड़ता है कि प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग, जितना उसका परसेंटेज वो लॉस शेयर करता था, जितना रिस्क बेयर करता था, अब उसका बर्डन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन पे आ गया है. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, lack of public confidence. I have also told you that in a partnership firm there is no need to show the books of accounts, or we can say financial accounts, to the public. So when public cannot show the books of accounts, how they will have trust or faith towards a partnership firm. When they can't see the books of accounts of a particular partnership firm, then they don't have trust or faith towards that partnership firm. अंडरस्टूड. हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को शो करना नहीं होता है. जब पब्लिक उनके फर्म के बारे में नहीं जान पाएगी, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख पा रही है, तो उन पे कैसे ट्रस्ट या फेथ करेगी? कोई नहीं करेगी. देखिए लिखा है, पब्लिक डोंट हैव ट्रस्ट और फेथ बिकॉज पार्टनरशिप फर्म डोंट शो देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द पब्लिक. जब लोग नहीं देख पाएंगे कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम फेथ ऐसे पार्टनरशिप फर्म पे कर सकते हैं? नहीं. तो ऐसे केस में कोई भी पब्लिक का कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहेगा. पार्टनर बनने के लिए दे मस्ट शो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे मस्ट सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म टू बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म. ठीक है. तो ऐसे केस में कोई भी पब्लिक का पर्सन पार्टनर बनना नहीं चाहेगा और ना ही ऐसे फर्म के साथ डील करना चाहेगा. देखिए लास्ट लाइन लिखी हुई, नो पीपल वांट टू मेक अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म और नॉट हैव इंटरेस्टेड टू डील विद इट. ना ही पार्टनर बनना चाहेगा और ना ही डील करना चाहेगा, क्योंकि हमें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता है. लास्ट पॉइंट इज़ रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. अगर आपको याद हो तो हमने फीचर्स में आपको बताया था, व्हेन वी डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देयर इज़ अ लास्ट पॉइंट
व्हाट इज़ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था कि या तो सारे पार्टनर्स एक्टिवली वर्क करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर उनके सबके बिहाफ में वर्क करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे साइन भी करेगा. ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कोई भी एक पार्टनर सबके बिहाफ में साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे, जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे ये हमारी पार्टनरशिप की डील होती है. कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे साइन करता है और फिर पार्टनरशिप हमारी फॉर्म हो जाती है. ऐसे केस में कोई ऐसा पार्टनर एंटर हो गया जो कि डिसऑनेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी जो भी चीज़ें या जो भी पावर्स उसको दिए गए हैं, जो भी वो काम करेगा वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करेगा. और ऐसे केस में फिर जो और पार्टनर्स हैं उनको लॉस भी हो सकता है. देखिए लिखा है साइन बाय एनी वन पार्टनर in the contract is binding on the other partners. A dishonest partner may enter for his or her personal benefit, then all the partners will suffer the loss. ऐसा पार्टनर जो सबके बिहाफ पे वर्क तो कर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ तो कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वर्क कर रहा है, तो इन दैट केस ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स विल सफ़र अ लॉस. So here we have cover all the points of demerits of partnership. Okay, now moving towards the next and the main topic of the partnership is types of partnership forms. Means ki we have discussing the features, means we have discussed the merits and the demerits of partnership. Now we will see the types of partnership forms. How many types are पार्टनरशिप फॉर्म्स, कितने तरह के कितने टाइप्स के होते हैं और इन सब के अंदर अपनी अलग अलग क्या मेन क्वालिटी, क्या मेन फीचर्स होते हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मीन्स द टाइम पीरियड. वी हैव क्लासिफाइड, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स इनटू टू मेन बेसिस. फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मीन्स की टाइम पीरियड. पार्टनरशिप में इसमें यहाँ पर होगा ड्यूरेशन की बेसिस पे कि कौन सी पार्टनरशिप किस ड्यूरेशन तक, किस टाइम पीरियड तक चलेगी. एंड सेकेंड वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ फर्म्स. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस मेंबर की, किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी होगी, कितना वो रिस्क शेयर करेगा, कितना लॉस होगा. ये एक बेसिस हो गया. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. यहाँ इस पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे कि किस पार्टनरशिप की कितनी टाइम पीरियड तक फॉर्म होगा, कितना उसका ड्यूरेशन होगी. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स. फर्स्ट इज़ पार्टनरशिप एट विल. देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अक्सर ये जो फर्स्ट वाला है हमारा पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, सेकेंड पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इट मे बिकम इन योर एग्ज़ाम शॉर्ट आंसर और मे बी इन लॉन्ग आंसर. ठीक है, तो गिव योर अटेंशन. पार्टनरशिप एट विल. सेकेंड वी हैव फिक्स टाइम पार्टनरशिप. थर्ड इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. Okay, let's see. The first is partnership at will. Partnership at will says that this type of partnership is formed for a uncertain period of time. Means it is formed for an indefinite period. The time period, the duration in this type of partnership is not specified. हम पार्टनरशिप करेंगे, कब तक जाएगी, कितने टाइम तक जाएगी, क्या इसका ड्यूरेशन होगा, क्या पीरियड ऑफ टाइम होगा, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, इट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड. ओके, सो इट इज़ फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. द पीरियड ऑफ टाइम, द ड्यूरेशन इन दैट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इज़ नॉट सर्टेन. कितनी दूर तक, कितना टाइम तक हमारी ये पार्टनरशिप बनी रहेगी या कितनी टाइम तक हमारी ये पार्टनरशिप चलेगी, इट इज़ नॉट डिसाइडेड. ठीक है, इट एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड विल एंड वेन एवर पार्टनर्स डिज़ायर सो. कह रहे हैं
जब सारे पार्टनर्स रेडी होते हैं, उनके कहने पर, उनकी मर्ज़ी से ये पार्टनरशिप एट विल स्टार्ट होती है। और जब वो चाहें, सारे पार्टनर्स मिल के चाहें, वो तब पार्टनरशिप हमारी क्लोज़ हो सकती है, एंड हो सकती है। कहने का मतलब सारे पार्टनर्स 3 या 4 जितने भी हैं सब इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, बिज़नेस करने के लिए तैयार हैं, पार्टनरशिप एट विल हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कौन सी टाइप की पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप एट विल होगी कि फिक्स टाइम होगी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। अगर पार्टनरशिप एट विल हमने डिसाइड किया है तो जब भी हम चाहें उस पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, और हम सब पार्टनर्स मिल के जब भी चाहें उस पार्टनरशिप को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है एंड विल एंड वेन एवर पार्टनर्स डिज़ायर सो। जब भी हम सब मिलकर चाहें उस पार्टनरशिप को हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। कोई भी एक पार्टनर उन सब के बिहाफ में नोटिस निकालेगा कि वी आर गोइंग टू डिज़ोल्व आवर पार्टनरशिप फर्म, एंड आफ्टर दैट पार्टनरशिप फर्म विल बिकम एंड। ठीक है, देखिए लिखा है एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड इट विल कम टू एन एंड। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये डिसाइडेड या सर्टेन या स्पेसिफाइड नहीं होता है। जब भी सारे पार्टनर्स मिल के चाहें इस पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वो जब भी चाहें इस पार्टनरशिप को क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टनर सबके बिहाफ में नोटिस दे देगा कि वी आर गोइंग टू डिज़ोल्व आवर पार्टनरशिप फर्म, और फिर उसके बाद हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्लोज़ हो जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। यहाँ पर ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम इज़ फिक्स्ड। करने से पहले या पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हमें पता होती है कि 2 या 5 साल बाद ये पॉलिसी हमारी मैच्योर हो जाएगी। तो हमारा पैसा जो अब हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं वो हमें 3 या 5 साल बाद, जितने भी साल की वो पॉलिसी होगी, इतने साल बाद हमें मिल जाएगी। इट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, वैसे ही ये पार्टनरशिप हमारी होती है। हमें पता होता है कि ये पार्टनरशिप हमारी कितने पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। तो हियर द ड्यूरेशन और वी कैन से पीरियड ऑफ टाइम इज़ फिक्स्ड। ठीक है, लाइक 3 to 5 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर्स से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक हम इसे ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स तक ही सिर्फ कर सकते हैं। 3 to 5 ईयर्स मतलब मिनिमम लोग इसी के बीच पार्टनरशिप को, फिक्स टाइम पार्टनरशिप को करते हैं। 3 से 5 साल या 3 से 10 साल। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि 5 ही साल तक हम सिर्फ कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 5 नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट 3 है। लेकिन ज़्यादातर पार्टनर्स 3 से 5 ईयर्स के बीच में ही इस फिक्स टाइम पार्टनरशिप की ड्यूरेशन को रखते हैं। तो हियर इट इज़ फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम 3 to 5 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, when time will complete this partnership automatically get closed। जब भी वो टाइम हमारा जो भी हमने फिक्स्ड किया है, लाइक 5 ईयर्स तक का किया है कि पार्टनरशिप हमारी 5 साल तक चलेगी, तो जैसे ही 5 साल हमारे कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। या हमने अगर 10 साल किया है, 7 साल, जितने भी साल या जितने भी टाइम पीरियड हमने फिक्स्ड किया है, वो जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि फिक्स टाइम पार्टनरशिप में हमारी ड्यूरेशन, हमारी पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड होता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है वो हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। ओके, थर्ड वन इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज सेइंग दैट कि दिस पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वी कैन से फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टनरशिप हम फॉर्म करेंगे, जिसको हम नाम पर्टिकुलर पार्टनरशिप का दे रहे हैं, यहाँ पर किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही वो पर्पज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क, project, venture. When that project will complete, it will close. It will close means the partnership firm will close.
ठीक है, तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दिस पार्टनरशिप is formed for a particular purpose, for a particular project, or we can say for a particular work. When that work, when that purpose, or we can say when that project will complete, the partnership firm will automatically get closed or get dissolved. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर हमने भी वो एग्ज़ाम्पल यूज़ किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रिज को या कह लीजिए रोड को, ठीक है, एक पर्टिकुलर रोड है हमारी या कोई ब्रिज है या डैम है, ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। डैम्स वगैरह हमने कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, सारे पार्टनर्स मिले, पार्टनरशिप फॉर्म हुई। डैम या ब्रिज जिसका भी हमने पर्पज़ लिया है, जो भी हमारा मेन मोटिव या मेन पर्पज़ है, ब्रिज बन गया या डैम बनने की हमारी पार्टनरशिप हुई, तो डैम जैसे भी कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो पार्टनरशिप फॉर्म हमारी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया। देखिए लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, व्हेन ब्रिज विल कंस्ट्रक्टेड पार्टनरशिप विल गेट क्लोज। ब्रिज बनने का अगर हमने पार्टनरशिप बनाई है कि ब्रिज बनेगा, फिर उसके बाद हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, तो जैसे ही वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वैसे हमारी पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म भी हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या कहती है कि इट इज़ फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, when that purpose will completed, then our partnership firm will also get dissolved. Okay, so these are the three types under on the basis of duration. अब हमने देखा यहाँ पर कि ड्यूरेशन, फर्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, इसमें हमने देखा टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, इसमें हमने देखा टाइम पीरियड डिपेंड करता है पर्पस पे कि कौन सा क्या हमारा पर्पस है, जैसे पर्पस कंप्लीट हुआ वैसे ही वो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि यहाँ पर कितने पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होगी, क्या रिस्क वो कैसे शेयर करेंगे, कैसे लॉस करेंगे। ओके, so in that we have two types. On the basis of liability of members we have two types, general partnership and limited liability partnership. It is very important. So the first type on the basis of liability of members is general partnership. General partnership is very simple partnership, means general partnership जैसे हमारी होती है कि यहाँ पर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। अब बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट करना तो सही नहीं रहेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप सब समझते हैं कि अब कभी भी बिज़नेस में हैवी लॉस हो जाएगा तो सारे पार्टनर्स को अपनी अपनी ओन प्रॉपर्टी सोल्ड करके उस डेट को या उस लायबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। तो यहाँ जनरल जैसे पार्टनरशिप हमारी होती है वैसी होगी। यहाँ पर पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, सारे पार्टनर्स एक्टिवली परफॉर्म करेंगे इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये इसमें जनरल मीनिंग जनरल है, इसमें कोई बात समझने की नहीं है। In this, all the partners have unlimited liability. In this, all the partners can actively participate in the activities of a firm. सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, जैसे कि हम समझते आए हैं। और यहाँ पर सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, फर्म की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, सारे पार्टनर्स एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर पार्टनरशिप या जितनी भी पार्टनरशिप इस टाइम चल रही हैं वो सब अंडर द जनरल पार्टनरशिप में है, मतलब सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ समझने का था नहीं, इसमें जनरल मीनिंग जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो सब है। तो जनरल पार्टनरशिप इज़ कि इन दिस ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड दे ऑल can actively participate in all the activities of the firm. In India, all the partnership is running under the general partnership. Okay, second type we have limited liability partnership or we can say LLP. तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हियर द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर लिमिटेड। अब आप कहेंगे इसमें ख़ास बात क्या है, हम पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पर LLP में जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, लेकिन एक्सेप्ट वन पर्सन। वो पर्सन कौन होगा, वो मेन ओनर होगा, मेन पार्टनर होगा ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म।
In this, liability of all the partners are limited to the extent of their share in this firm except one partner. अब ये जो लाइन है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन दिस फर्म, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जितनी भी अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएंगे, इट इज़ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हेन दे एंटर इनटू द बिजनेस. वो बताएगी कि आप किस टाइप के पार्टनर में आएंगे. आप वो पार्टनर तो नहीं कि जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो. देखिए, अगर कोई पार्टनर फॉर एग्जांपल इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर द 4 पार्टनर्स. One partner come into in business and give 50,000 rupees. बहुत स्मॉल सा एग्जांपल ले रहे हैं. 50,000 रुपीज़ एज अ कैपिटल एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस. सेकेंड पार्टनर आए, उन्होंने 60,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया. थर्ड पार्टनर आए, उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट किया. फर्स्ट ने 50, सेकेंड ने 60, थर्ड ने 40. फोर्थ पार्टनर आए, उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट किया. ठीक है. अब यहाँ पर जो सबसे कम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और जितने भी पार्टनर्स रिमेनिंग है जो कि 50, 60, 40 वाले हैं, उन सब की लिमिटेड होगी. बात समझ में आई? तो LLP कहता है कि इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे, उन सब की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी, और डिपेंड करेगी कि वो कितनी कैपिटल बिजनेस में लेके आए या बिजनेस में उन्होंने अपनी इन्वेस्ट किया, एक्सेप्ट वन पार्टनर. एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और उस एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पहले हमारी कंट्री में ये कॉन्सेप्ट नहीं था. ये कॉन्सेप्ट हमारा नया आया है, इसीलिए अक्सर एग्जाम में से पूछा भी जाता है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारे कहाँ से आया है? लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और 2009 में हमारा इंडिया में ये LLP वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया. इसके बारे में आगे हमारे पास फीचर्स भी हैं, स्पेशल फीचर्स ऑफ LLP, जिससे हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड जानेंगे. थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको यहाँ पर कि किस पार्टनर की लिमिटेड होगी, किस पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, कौन से पार्टनर लिमिटेड वाले में आएंगे, कौन से पार्टनर वन पार्टनर में आएंगे जिनकी अनलिमिटेड होगी. तो ये जब हम फीचर्स ऑफ LLP डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें इन डिटेल उसके फीचर्स पढ़ेंगे LLP की. देन ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर टू यू. ठीक है. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इसके बाद हमारा फीचर्स है, फीचर्स ऑफ LLP. इसी से रिलेटेड है, 5 to 6 पॉइंट्स हैं. वी विल कवर इन अ GMAT ऑफ कोर्स. ठीक है. उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होंगे. जैसे हमारा अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें हमने 2 टाइप्स बेसिस देखे, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. इसमें 3 थे, इसमें 2 थे. इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं? वी विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.